ये यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो उनका कीमती समय निकाल के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आज उनकी 4 बड़ी बड़ी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। लोग बाद में आए हुए हैं, लास्ट में ज्वाइनिंग हमारे साथ हुआ है, तो मैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। 17-18 साल पहले सर से मेरी मुलाकात हुई थी एक क्लिनिक में, वहाँ से मैंने मेरी नज़रों के सामने ही उनको आगे बढ़ते हुए देखा है, और वो भी आध्यात्मिक रास्ते से आध्यात्मिक जीवन जीते हुए है, पूरी ईमानदारी से और डिसिप्लिन मैनर में पूरा उन्होंने ग्रोथ किया हुआ है। आज उनकी 4 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इम्पल्स फार्मा जो अफ्रीका को कैटर करती है, कमला लाइफ साइंसेज जो डेवलप्ड कंट्रीज को कैटर करती है, इंजेक्टेबल प्लांट है उनका, जैसा मैंने बताया सेकेंड वेव ऑफ कोरोना में जो रेमडेसिविर उनका ये प्लांट था महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो कैटर किया है रेमडेसिविर को। थर्ड प्लांट उनका गुजरात वलसाड़ में जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स बनाती है, एंड फोर्थ प्लांट उनका ट्रायोफिट करके न्यूट्रास्यूटिकल है। और भी उनकी कुछ दवाई की कंपनियां हैं जो मार्केटिंग फील्ड से हैं। पहले उनकी प्रोफाइल एक हम देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद सर का जो है हम उनकी जो लीडरशिप है उनको जो मैं मेंटर मानता हूँ, क्योंकि मेरी नज़रों से उनका ग्रोथ देखा हुआ है और अपने आप में उतारा हुआ है। तो पहले उनकी पूरी प्रोफाइल हम देखेंगे, उसके बाद सर से हम जितना भी आज ले पाए अपने जीवन में उतार पाए, ग्रोथ के लिए उतार पाए, जीवन जीने के लिए उतार पाए, परिवार को चलाने के लिए उतार पाए, इतना हम पूरी कोशिश करेंगे सर से। We are especially into international marketing, so you see we have got such vast, say 204 countries, we cannot reach out, so we have the partners continent-wise, as CIS, Middle East, Africa, East Africa, West Africa. That way we have got this 6 partner company for marketing. This is our biggest facility. I can say proudly that this is 160,000 square feet, unique sterile facility, biggest facility in Maharashtra state. We invested 200 crores into this facility. This is a product portfolio for that. And we are catering 22 Indian multinationals, okay, including Cipla, Dr. Reddy's, and you can see these all big names have got their own audit and very stringent audit, just like international audits. Next. These are the photos. This is our actually first manufacturing unit. We started in 2007, catering Africa. We are the 5th biggest exporter to Nigeria. About more than 1,000 exporters are there for not Nigeria in particular, telling you, okay? Nigeria is very big market and we could be number 1, but just because we do not have manufacturing that big facility, we have got lot many
Orders may be more orders than the number one. Okay, but let us see how we go ahead. Next. This is our nutraceutical unit. We started last year. Yeah, next. This is upcoming facility. We wish to start it very soon. This will also be unique facility with 4 लाख स्क्वायर फीट की ये फैसिलिटी रहेगी. 400-450 करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगी. प्लीज नेक्स्ट. These are our growth partners. And I'm pretty sure most of you sitting out here must have consumed medicine from these brands. These are the Indian multinationals. Next. We are doing business with our partners in 49 countries. This is the map. Next. These are international accreditations. Next. These are few social activities in Kamla we do for our employee engagement programs. The way you are doing the similar line, we do this Kamla Kanyadan Yojana for girls who has completed eligible for 2 years. They are working with us, so we take care of their marriage. And then Kamla Matosh Yojana, any senior lady in employees home above 65, we give specific amount every year specific for the senior ladies. And Kamla Saraswati Yojana for the girl child, we take care of their education, and you can see the same philosophy in our company also. Nari Shakti, all are Naris. Kanyadan, Matoshji and Saraswati. Please, next. This is our one of the biggest CSR project which we did 2 years before. पालघर ये मेरी कर्मभूमि है. अभी पालघर छोड़ के मैं मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ, तो सोचा उन्मुक्ति कर दूँ. वहाँ का रूरल हॉस्पिटल हमने रिवैम्प किया. 8,500 स्क्वायर फीट 32 बेड्स का स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बना के हैंड ओवर किया गवर्नमेंट को. 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हमने की. नंबर 2, शौर्य धाम. हमारे जीवन में भगवान राम का महत्व हम लोग सब जानते हैं. राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में एक बड़ा शौर्य भवन आकार लेने जा रहा है. वहाँ पे विश्वस्त बना, वहाँ पर 1 करोड़ की राशि महेश धाम उज्जैन. महेश सेवा निधि कहा जाता है कि हमें जब भी सफलता मिले आयु में, तो सबसे पहले अपना परिवार, अपना समाज और राष्ट्र के उत्थान में योगदान देना चाहिए. उसी धरती पर हम लोग चल रहे हैं. ये महेश सेवा निधि में माहेश्वरी समाज में बिलोंग टू राजस्थान माहेश्वरी. सो ऐसी कुछ फैमिलीज है जो सीनियर सिटीजन्स है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं. उन फैमिलीज को हम लोग हर साल जो लाड़की बहन योजना शुरू है, वैसे हमने पहले से शुरू कर रखा है. Next. This is what is our vision. Let's start. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. आज के इस विशेष आयोजन पर उपस्थित KTT फार्माटेक के मैनेजमेंट, उनके परिजन, उनका स्टाफ, उनके एम्प्लॉइज, उनके वेंडर्स, सप्लायर्स एंड ग्रोथ पार्टनर्स, आप सभी को नमन, वंदन, अभिवादन. जय श्री राम. आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया, सम्मानित किया. उद्योग व्यापार के क्षेत्र में अपनी उच्चतम भूमिका निभाने वाले आपके जो ग्रोथ पार्टनर से विशेष विभूतियां हैं, उनसे प्रत्यक्ष परिचित होने का अवसर मिला.
ये सुहानी शाम अद्भुत अनुभव का मैं साक्षी बन पाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस प्रबुद्ध सलाहकार के सामने अभिव्यक्त होने का जो मुझे अवसर मिला, आयोजकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 20-25 मिनट का समय दिया है, सीमित समय में मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। आयोजक निश्चिंत रहे। सबसे पहले मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा उन विभूति के प्रति जिन्होंने मुझे एक क्षमता दी कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं, अपनी बात निडरता के साथ प्रस्तुत कर सकूं, जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व चारित्र को यह आयाम दिया कि मैं अपने पुरुषार्थ का इस तरह से परिचय दे सकूं। उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। इस श्रृंखला में हमारे इष्ट दैवत भगवान दत्तात्रेय आते हैं, उसके उपरांत मेरा परिवार, इन सभी का मैं आजीवन स्मरण रखूंगा। इन सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज का जो विषय मुझे अरविंद भाई ने दिया है, मेरा उद्योग जगत में जो सफल रहा है, मेरा अनुभव रहा है, और उपस्थित श्रोताओं को उद्योजकता के विषय में उद्बोधन करना। सदन को विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं कि इस विषय में जो औपचारिक शिक्षा होनी चाहिए वो मैंने ली नहीं है। मैं कोई अर्थशास्त्री भी नहीं हूं, ना कि मेरे दावा है कि मैं एक सफल और प्रसिद्ध उद्योजक हूं, ना कि मेरी इस किस्म की कोई प्रतिभा या प्रतिमा है कि मैं इस प्रबुद्ध सलाहकार को उद्बोधित कर सकूं, संबोधित कर सकूं। महाराष्ट्र में संत रामदास स्वामी होके उन्होंने कहा, जे जे अपना सिठावे ते ते इतरांसी सांगावे, शहाने कुर्म सोडावे सकल जन। इस उक्ति का आधार लेकर जो मुझे जानकारी है, केवल सामान्य ज्ञान, जिज्ञासा, तर्क संगत वैचारिक क्षमता, अतुट ईश्वर निष्ठा और संपूर्ण सच्चाई के साथ पिछले 30 सालों में मैंने उद्योग व्यापार करते करते जो अनुभव प्राप्त किया, उसको मैं आपके सामने संक्षेप में और सरल भाषा में रखने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी बात 2 चरणों में रखना चाहता हूं। जैसे कि मुझे बताया गया, उद्योग जगत में मेरी यात्रा बड़ी संक्षेप में, और केटीटी फार्माटेक के बारे में मेरा अनुभव, मेरा आकलन, और विशेष रूप से आज यहाँ पर जिस भव्यतम अद्भुत आयोजन किया है उसके बारे में मैं मेरा अपने विचार रखूंगा। मैं राजस्थान माहेश्वरी परिवार को बिलोंग करता हूँ। जोधपुर यह हमारी जन्मस्थली। हमारे परदादा जी 125 साल पहले उद्योग व्यापार के लिए महाराष्ट्र में जलगांव का एक छोटा देहात शेंदुर्णी, अजंडा केवट के पास 16 किलोमीटर पर यह छोटा सा देहात है। यह हमारा पैतृक गांव, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर वहां पर आप बसे। हमारा बचपन वहीं पर गया, छोटा देहात। 50 साल पहले, मेरी आज उम्र 55 साल की है, 50 साल पहले का देहात आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पर उपस्थित जो लोग देहात में रहे हैं उनको जरूर इस बात की अनुभूति होगी। छोटे छोटे मिट्टी के घर, मिट्टी की गलियां, दिया बत्ती की कोई सुविधा नहीं, शौच शुद्धि के स्नान की कोई व्यवस्था नहीं, जलपान के लिए विहिर जिसको बावड़ी कहते हैं वहां से पानी लेना, मतलब साफ सुथरा कोई पानी नहीं, कपड़े से छानकर पीना, और शौच शुद्धि के लिए नदी पर जाना, वहीं सब कार्यक्रम करके स्नान के घर पे आना। घर भी बहुत साधारण घर, मतलब 20 बाय 10 की खोली, जहां पर मम्मी पापा और 5 भाई बहन रहते थे। जमीन पर फर्श नहीं, ट्यूब नहीं, फैन नहीं,
आप ये सोचो कि स्टोव, गैस, फ्रिज नहीं, टेप, रेडियो, टीवी, किस किस्म का मनोरंजन का कोई साधन नहीं। बारिश के दिनों में काफी बचत मैंने मेरे आंखों से देखी है। बारिश 10 जगह पर बर्तन रखने के बाद भी पानी गिरता था और मिट्टी की जमीन होने के कारण कीचड़ बनता था। गलियों में भी कीचड़, घर में भी कीचड़। इस किस्म की साधारण सी निम्न स्तर की हमारी जीवन शैली थी। स्कूल भी ऐसे ही थे। जिला परिषद मराठी मुलंची शाला, घर से 3 किलोमीटर दूर, पैदल जाना पैदल आना। स्कूल में भी उसी तरह मट्टी के सूल, ट्यूब नहीं, फैन नहीं, कुछ ही किस्म की व्यवस्था नहीं। आप अनुमान लगा सकते किस किस्म का शिक्षा का स्तर रहा होगा। ऐसे में हमारी पढ़ाई आगे बढ़ती गई। 10वीं की कक्षा ही बोर्ड की एग्जाम्स, तालुका का गांव 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना। 10-20 गांव में एक स्कूल, तो स्कूल में काफी विद्यार्थियों की संख्या होती थी। 150 छात्र उस साल 10वीं की परीक्षा में बैठे थे। केवल 15 छात्र उत्तीर्ण हुए। आप लोग जानते हो आजकल हर स्कूल के बाहर गर्व से कहा जाता है कि हमारे स्कूल का निर्णय 10वीं का पिछले कई सालों से 100% लग रहा है, लेकिन हमारे स्कूल का रिजल्ट 10% लगा। केवल 15 बच्चे पास हुए 150 छात्रों में से। मैं उस वर्ष प्रथम क्रमांक से उत्तीर्ण हुआ। उन दिनों में जो छात्र उच्च क्रमांक से पास होते थे, एक तो डॉक्टर बनते थे या इंजीनियर। मैं डॉक्टर बनने का सपना लेके नासिक पहुंचा, डॉक्टर बना। पालघर जहां पहुंचा, स्वयं का क्लिनिक शुरू करना था। 94 में क्लिनिक शुरू किया किराए की जगह में। ईश्वर की बड़ी कृपा रही शुरू से, शायद मैं उनका लाडला रहूंगा। पहले दिन से क्लिनिक बहुत अच्छी तरह से चलने लगी। लोगों का प्रतिशत, रुकनों का प्रतिशत अच्छा रहा। 10, 20, 30, 40 करते करते पहले साल में मैंने सेंचुरी मारना शुरू किया। 100 से ज्यादा रुकनों को मैं देखने लगा। सफलता मिली, आमदनी बढ़ी, खुशहाली बढ़ी। स्वयं की शादी, भाई बहनों की शादी की। गांव से पूरे परिवार को पालघर स्थलांतरित किया 500 किलोमीटर दूर। एक ही साल में मैं सोचा था कि 2-4 साल जाके थोड़ी पूंजी जमा करके वापस गांव आ जाऊंगा। चिंता मत करना माँ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन सभी को मैंने पालघर स्थलांतरित कर दिया। फिर अपने पूरे परिवार को साथ लेकर उद्योग व्यापार में शुरुआत की। डॉक्टर्स के लिए सबसे आसान और छोटा, कम पूंजी लगने वाला उद्योग जो है वो है रिटेल मेडिकल स्टोर। मैं डॉक्टर, भाई साहब को बोला तो मेडिकल चला, मैं बिकता हूँ तो बिकता जा। हमारा मेडिकल स्टोर शुरू हो गया। काफी सफलता मिली उसमें। जैसे चीज में सफलता मिलती है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आपको और कुछ करने की इच्छा होती है। जैसे अरविंद भाई ने 1, 2, 3, 4, जैसे पहले बस उसी किस्म की हमारी हिस्ट्री रही। फिर हमने सोचा कि रिटेल की जगह पर हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आया होलसेल मेडिकल करते हैं। जो हम लोग एक मेडिकल से कमाते हैं तो 1000 मेडिकल से कमाएंगे। तो हमने होलसेल मेडिकल का काम शुरू किया। विश्वास करो वो भी बहुत अच्छा चलने लगा। हमारी आमदनी 5 गुना बढ़ गई। अभी होलसेल काम करते करते हमने सोचा ये दवाई लोगों की बिके करेंगे क्या, थोड़ा अपना कुछ करें। तो हमने अपने ब्रांड्स की दवाई बनाना शुरू करी। भाग्यवश पालघर यक्षत्र फार्मा हब है। यहाँ पर आसपास कई सारी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपना काम कर रही है। वहां पर जाके हमने बातचीत की। सरस्वती माता की कृपा रही, जीवा पर बातचीत अच्छी कर लेता हूँ। 70-80 प्रोडक्ट बनाए। पालघर में 2 रिप्रेजेंटेटिव रखे, वहां पर मार्केटिंग शुरू किया। बहुत अच्छा चलने लगा। उसका विस्तार किया पूरे महाराष्ट्र में। 36 डिस्ट्रिक्ट, 36 डिस्ट्रीब्यूटर, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव रखे। काम भी बने बहुत सफल रहा, मजा आई। फिर महत्वाकांक्षा जागृत हुई कि अभी आगे क्या करना है। तो हमारी नजर जो मैन्युफैक्चरर थे, जिनके पास हम दवाई बनाने जाते थे, लगता था कि ये भाई तो हमारे से बहुत अच्छा कमाता होगा, हमारे जैसे कई लोगों को दवाई लिखता होगा, तो क्यों ना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करें। हम लोग 5 मित्र मिलके पहली 2007 में इम्पल्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की।
आज तक सफर बहुत खुशहाली से जा रहा था, आनंद में से जा रहा है, हर चीज में सफलता मिल रही थी। जिस दिन हमने फार्मास्यूटिकल कंपनी में एंट्री ली, शुरुआत की 2007 में, बस असफलता, निराशा, दुख, तकलीफें सब एक साथ आने लगी। हमने सोचा क्या बड़ा पाप किया, कौन सी गलती कर दी, यहाँ घुस गए। ये 2007 से 2013 का समय बड़ा कठिन रहा। 5 मित्र जब कोई व्यापार शुरू करते हैं तो एक उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट रहती है, लेकिन तो जिस दिन आप एक्सट्रीम्स देखते हो, बहुत ज्यादा नुकसान या बहुत ज्यादा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा नुकसान है तो एलिगेशन तेरी वजह से, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना तो मेरी वजह से, इस किस्म के रंग देखने लगे। बैंक का बकाया, कभी एनपीए में आएंगे भरोसा नहीं, क्रेडिटर्स सबसे लास्ट, क्रेडिटर्स उसमें भी पैकिंग मटेरियल वाले लास्ट, सैलरी एक 2 महीने की, कॉन्ट्रैक्टर को 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, सब चकरा गए। अरे करना क्या, कंपनी बिकने निकाली। केजीएन आप जानते हो, केजीएन भाई, उन्होंने कंपनी खरीदने का वायदा किया, 8 करोड़ 11 लाख में एक कंपनी देनी तय हो गई, 11 लाख बयान आया, 8 करोड़ रुपया वो देने थे। 1 महीने का ड्यू डिलीजेंस था, ड्यू डिलीजेंस का रिपोर्ट नेगेटिव आया, भाई ने मना कर दिया, सब चिंतित हो गए। एक बार आपने कोई मन बना लिया कि ये अपने को चीज बिकनी है, तो कोई उसको सीरियसली चलाने को नहीं देखता, नहीं यार इसको निकालना है, इसको निकालना है। और आपको बताता हूं कि वो कंपनी बिकने के बाद भी हमारी लागत के खाली 50% का पैसा आने वाला था, 50%। मतलब हमने जो लागत लगाई है, 1 रुपया हमारे जेब में 50 पैसा आने वाले थे, तो भी हम खुश थे कि सोचा बला टली यार, आधा तो आ रहा, चल इज्जत बचेगी, अपना अपना ट्रेडिंग चालू रखेंगे। लेकिन कंपनी बिकी नहीं, कोई आगे आने को तैयार नहीं, दिन ब दिन नुकसान बढ़ते जा रहा था, आमदनी कम, खर्चा ज्यादा। और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसा जो एक शो होता है, जब सब अच्छा चलता है ना, हम लोग एक्सपेंड करते हैं। जब कुछ थोड़ा निगेटिव आता है तो सब हालत बिगड़ जाती है। सब लोगों ने 2013 में एग्जिट ले लिया, लेकिन मेरा अंतर मन कहता था, मैं एक ही मारवाड़ी था उसमें 5 लोगों में, मेरा अंतर मन करता था नहीं ये तो चलना चाहिए, ये चीज तो ऐसा छोड़ना नहीं, ये तो चलेगी। 4 लोगों ने एग्जिट लिया। 2013 में मैं अकेला बचा, सब जिम्मेदारी माथे पर, वेंडर्स का, सप्लायर्स का पेमेंट, बैंक का देना, और ये भाइयों को भी देने के लिए पैसा नहीं। उनका तो क्या एग्रीमेंट कर ले तो आज से सब जिम्मेदारी, हमको पैसा आराम से देना, हमारी एग्रीमेंट हुई 2 साल के बाद पैसा तुमको दूंगा, तुम्हारी लागत का सिर्फ बात यह है, आप अगर किसी को बिकते तो आधा पैसा मिलेगा, मैं आपको पूरा पैसा दूंगा। आज आप अगर किसी को बिकते हो तो रुपया का 8 आना मिल रहा है, मैं आपको पूरा पैसा दूंगा। 2 साल का समय तो एग्रीमेंट हो गया, वो खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, चलो एक कोशिश कर लेते। 2013 में मैं 100% इम्पल्स फार्मा का ओनर बना, एसेट के साथ नहीं, लायबिलिटीज के साथ में। बड़े भाई साहब राजू दादा को साथ में बुलाया, हिस्सेदार बनाया, डायरेक्टर बनाया, हम दोनों मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं। सुबह शाम क्लिनिक मेरी शुरू ही थी, सुबह शाम आपको बताया मैं 100-150 पेशेंट दिखता था, सुबह शाम ओपीडी चालू, दोपहर में फैक्ट्री जाना, हफ्ते में 2-3 बार मुंबई मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को काम मांगने के लिए जाना, लोकल के धक्के खाते खाते। दोपहर का खाना रोटी सब्जी दाल चावल, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मिक्सर में निकाल कर दाल ज़्यादा डालकर पतला बना के लोटे में मेरा दोपहर का खाना हमारा परिवार रेडी रखता था। मैं दोपहर का खाना खाता नहीं था, पीता था और दौड़ता था। इस तरह की कठिन परिश्रम के साथ ऐसा कुछ महालक्ष्मी जी की कृपा हो गई, हमें जो हमारे पार्टनर्स का 2 साल के बाद जो बकाया देना था, हमने केवल 6 महीनों में दे दिया। अगले 6 महीनों में बैंक को नील कर दिया। हमारी कंपनी जो इम्पल्स फार्मा डूब रही थी, एनपीए में जा रही थी, सब लोग जान छोड़ के भाग रहे थे, उस कंपनी का हम दोनों भाइयों ने इस तरह दिन रात मेहनत करके उसको संजीवनी दी।
भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद, महालक्ष्मी जी की कृपा और सरस्वती माता का जीवा पर वास, सच्चाई, इसके साथ वो कंपनी बहुत अच्छी तरह से चली। 2013 से 2017 तक 4 साल में अरविंद जी उसके साक्षी है। हमने उसको रिवैम्प किया, 5 टाइम्स हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। हमने कंपनी डाली थी 5 करोड़ टैबलेट या कैप्सूल बनाने के लिए, हमारा 2017 तक अपनी कैपेसिटी 25 करोड़ टैबलेट कैप्सूल बनाने की हो गई। 2017 से 2023 तक हमने और 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई। जैसे आपको बताया कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इस किस्म से हमने अपनी प्रोग्रेस की। हमने परदेश गए, एक्सपोर्ट शुरू किया, 1 कंट्री 2 कंट्री करते करते आज हमारा कारोबार 30 करोड़ से आज 300 करोड़ तक, और आज विश्व के 50 देशों में चल रहा है। पहले मैं अकेला था, भाई साहब ज्वाइन हुए, उसके बाद में मेरी एक संतान, उनको एक संतान है। दोनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस हुए। एक पुणे विजय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस बना, सोचा था इसको कार्डियोलॉजिस्ट बनाऊं। दूसरे भाई साहब का लड़का सोलापुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस बना, हमने सोचा तुझे न्यूरोसर्जन बनाएंगे। लेकिन दोनों को हमने अपने उद्योग व्यापार में सम्मिलित किया। उन्होंने वैद्यकीय जो उनका करियर था वो छोड़कर हमारे साथ सम्मिलित होने को उन्होंने प्रशस्त समझा। आज इस मन से उन दोनों को धन्यवाद देता हूँ। अगर आपके इंडस्ट्री में सक्सेशन नहीं है तो काम करने की मजा ही निकल जाती है। हम किस बात के लिए काम कर रहे हैं, भाई छोड़, इससे समेट लेते हैं। आज हम वो हमारे साथ में जुड़े तो हम बड़ा सपना देख पा रहे हैं। हमारा कमला ग्रुप का सपना जैसे यहाँ पर लिखा था 2030 में एक विजन 2030 अगर डिस्प्ले कर सके तो हमें और कुछ फैक्ट्रीज बनानी है। कंपनी की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ तक ले जानी है। बीएसई एनएसई स्टॉक एक्सचेंज पर अपना आईपीओ लाना है। आई वाली धनराशि, आईपीओ से जो धनराशि आएगी 100 एकड़ जमीन में स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड क्लास फार्मा पार्क खड़ा करना है। इससे हम भारतवर्ष के सबसे बड़े सीडीएमओ बनना चाहते हैं। और साथ साथ मेरी जो मनीषा रही है हमेशा से कि यूएस डॉलर में बिलियनर्स बनने का, वो भी सपना पूरा होगा। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर मेरा प्रथम चरण समाप्त करके द्वितीय चरण पर आता हूँ। मुझे 20 मिनट का समय 10 मिनट में खत्म करता हूँ। केटीटी फार्माटेक के बारे में मेरा अनुभव और आकलन बताना चाहूँगा। सौभाग्यवश सबसे पहली इम्पल्स फार्मा रही जिसमें टैबलेट कैप्सूल का काम हो रहा था। शुरू में 100% परचेस मैं स्वयं करता था, पूरा परचेस मैं देखता था। अरविंद जी हमारे डाइस पंचेस के सप्लायर थे, तो इसलिए उनसे बार बार मुलाकात होती थी। अरविंद जी की एक छवि है, एक प्रतिमा है, जैसे भी हमारे भाई राजस्थान भाई और ने बताया, उनकी ऐसी एक छवि है, एक अटायर होता है उनका, एक फॉर्मल ड्रेस में आना, एक उनके मुखारविंद पर हमेशा हास्य रहता है। बात मितभाषी है और बात मुंह खोलते हैं तो सिर्फ नॉलेज ही निकलता है। तो हमारे साथ जो बैठते थे 10 मिनट का समय 1-1 घंटे तक जाने लगा। पूरे फार्मा सेक्टर में जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में हमको इनसे जानकारी मिलती थी। नए नए मॉलिक्यूल्स क्या आ रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, मशीनरीज नई नई क्या आ रही है, इस सभी के बारे में इनसे चर्चा होती थी। ट्रस्ट मी, जीरो गॉसिपिंग, किसी के बारे में भला बुरा की बात कभी नहीं होती थी। सिर्फ प्रोग्रेस की बात होती थी, अपडेट्स की बात होती थी, करंट अफेयर्स की बात होती थी। इस किस्म से हमारी मित्रता बढ़ती गई। केटीटी एक हकीकत में तो डाइस पंचेस बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये एक्चुअली कॉम्प्रेशन का सॉल्यूशन देने वाली कंपनी है। आपके प्रोडक्ट को वो समझती है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझती है, आपको अच्छी तरह से सुनकर उस पर वो चिंतन करते हैं और क्वांटिटी विद क्वालिटी में कैसे इजाफा हो और अपने कस्टमर को कैसे मुनाफा बढ़े, इसका चिंतन करके सटीक सॉल्यूशन वो आपके पास लेके आते हैं। यह उनकी कोर क्वालिटीज है। मार्केटिंग की बात करें तो जैसे
मैंने पहले भी बताया, अरविंद जी एक स्वच्छ प्रतिमा के धनी है, साफ सुथरा उनका व्यवहार है, अटायर भी अच्छा है। तो इनसे सभी कंपनियों के हाई लेवल्स के जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, उन सभी महानुभावों के साथ इनकी मित्रता सहजता से हो जाती है। इनसे वार्तालाप में उनकी जो मित्रता होती है, इसका मतलब उनका प्यार बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात, सिर्फ प्यार होने से भी काम नहीं होता, नाम लेना उचित नहीं होगा, नहीं तो ऐसे कई लोग हैं जिनका प्यार बहुत अच्छा लेकिन कंटेंट बराबर नहीं, तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं, आप बातचीत करोगे ऑर्डर नहीं मिलेगी आपको। इन्होंने इनके अपने कंपनी की और उनके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, मार्केट में पोजीशनिंग इस किस्म से की, एक कॉर्पोरेट के जैसी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल वर्कमैनशिप, इसकी वजह से इस भारतवर्ष के सभी बड़ी नामांकित कंपनियों में इन्हें सहजता से प्रवेश मिल गया। अरविंद जी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल की जो पिमैक CPHI में इनका स्टॉल हमेशा रहता है। स्टॉल भी बहुत विचार मंथन के बाद किसी अच्छी थीम के साथ बनाते हैं। इनका स्टॉल का इंटीरियर बहुत सराहनीय होता है। अरविंद जी का हर कंपनी के हर व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत परिचय होने के कारण उनके स्टॉल में भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। इस भीड़ के बाद भी हर मेहमान को स्पेशल फील करवाना, उनसे पर्सनली बात करना, ये वो भूलते नहीं। यह एक कला उनमें है जो तारीफ काबिल है। मुझे लगता है कि टूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आज भारतवर्ष में, मुझे विश्व की जानकारी नहीं, लेकिन मैं 17-18 साल से अगर कंपैरिजन करता हूं तो टूल मैन्युफैक्चरर्स को जानता हूं। सबसे ज़्यादा तेजी से तरक्की करने वाली KTT फार्माटेक यह कंपनी है, मैं विश्वास के साथ बताता हूँ। अरविंद जी की कंपनी का, अरविंद जी के एम्प्लॉयज़ का और उनके जो स्टेक होल्डर्स है, एसोसिएटेड है, उनका भविष्य उज्जवल है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। मैं समापन में 1 मिनट की बात करके मेरी बात समाप्त करता हूँ। BAPS के सन्यासी ज्ञान वत्सल जी का मैं बड़ा फैन रहा हूँ। ज्ञान वत्सल जी सफलता की बड़ी सरल व्याख्या करते हैं। उद्योग जगत के काफी प्रिय वक्ता है, कई सारी कॉन्फ्रेंसेस में वो एड्रेस करते हैं। जरा ध्यान से सुनना। पिछले साल 50 करोड़ का टर्नओवर था, इस साल 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ। इसे वो केवल ग्रोथ नाम देते हैं। अगर ये ग्रोथ जर्नी में एथिक्स, मोरल, प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिन सम्मिलित हो तो वो उसे प्रोग्रेस नाम देते हैं। और इस प्रोग्रेस जर्नी में ह्यूमैनिटी, रिलीजियसनेस, स्पिरिचुअलिटी, win-win deal with our customer and giving back to society mindset जिसका हो तो उसे वो सफलता, सक्सेस नाम देते हैं। ग्रोथ, प्रोग्रेस और सफलता। और विश्वास करो, हम यहाँ पर बैठे हुए हर मनुष्य को इसी प्रकार की सफलता की कामना करनी चाहिए। और जो अपने आयुष्य में, जीवन में जो हमारा अपेक्षित सुख, शांति, समाधान, शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सके, उपलब्ध हो सके। कबीर कहते हैं, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए।
बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार इस जीवन में, इस जिंदगी में यारो, पर्दा गिरने पर भी तालियां बजती रहे। इस मंगल कामनाओं के साथ, आप जोरदार तालियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर जरूर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और मंच पर, किसी और विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और बहुत ही सारा इंसाइटफुल सेशन था।